Algebra July 2025 paper solution of board exam. Let us start with first lesson number 1 linear equations in two variable. इसका first question क्या है? Choose the correct alternative and write its alphabet with its sub question number. ये 1 mark का question है और ये problem set 1 का question number 1 sum number 3 सेम ही question है. इसमें क्या पूछा है? The value of determinant 5 minus 7 3 minus 4 is dash. तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी 1. तो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन डी 1. इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? 1 कैसा मिला? अभी क्वेश्चन ये था 5 माइनस 3 3 माइनस 4, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ढूंढना था. तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू माइनस 4, 5 इंटू माइनस 4 माइनस 3 इंटू माइनस 7, 3 इंटू minus 7, that's equal to how much? 5 minus 4 is how much? Minus 20. Minus into minus plus 3 sevens are 21. तो minus 20 plus 21 कितना है? Plus 1. तो आंसर क्या है? Plus 1. That is option D, plus 1. Question 2 for simultaneous equations in variables x and y. Dx is equal to 49, dy is equal to minus 63, d is equal to 7. Then find the value of x. ये 1 mark का question है और problem set 1 का question number 1 sum number 2 same question है. तो dx कितना दिया है? dx is equal to 49. d कितना है? d is equal to 7 और x ढूंढना है, y ढूंढना नहीं है. इसके लिए dy की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ dx और d की ज़रूरत है. सो फॉर्मूला क्या है? therefore x is equal to what? dx upon d. therefore x is equal to how much? dx कितना है? 49 और d कितना है? 7. तो 49 upon 7, 49 goes in 7 table, 7 ones are 7 sevens are 49. therefore x का वैल्यू कितना है? 7. Question 3. Find the value of x plus y and x minus y of the following given simultaneous equations. Equations क्या दिया है? 101x plus 99y is equal to 501 और second equation क्या दिया है? 99x plus 101y is equal to 499. ये 2 mark का question है और ये practice set 1.1 का question number 2 का sum number 7 है. मगर इस सम में प्रैक्टिस एट 1.1 में जो सम दिया है उसमें x और y का वैल्यू भी ढूंढना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है उसमें x एंड y का वैल्यू नहीं ढूंढना है, सिर्फ x प्लस वाई का वैल्यू ढूंढना है और x माइनस वाई का वैल्यू ढूंढना है. नाउ लेट जो भी इक्वेशन यहाँ पे दिया है, लेट फर्स्ट वन 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501 भी इक्वेशन 1. उसी तरह सेकेंड वाला जो क्वेश्चन में दिया था 99x प्लस 101y equal to 499, let this be equation 2. So first we will add both the equation. So adding equations 1 and 2, 1 and 2, what we will get? ये दोनों इक्वेशन लिखना है. 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501 और सेकेंड इक्वेशन भी लिखना है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499. इन दोनों को ऐड करना है. व्हेन यू ऐड बोथ ऑफ देम, what you get? 101 plus 99 is how much? 200x प्लस उसी तरह इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी we'll get 200y is equal to इन दोनों को 501 plus 499 is how much? 1000. अभी इन दोनों में 200 कॉमन है, उसको कॉमन निकालो 200 और ब्रैकेट में क्या बचेगा? x plus y is equal to 1000. Now bring this 200 on the right hand side. जब भी 200 right hand side में आएगा it will go in the denominator. तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ x plus y is equal to 1000 और ये 200 will come below 1000. दो ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा. 10 जो है 2 के टेबल में जाते हैं. 2 1s are 2, 5s are so what we got? x plus y. therefore x plus y is equal to 5. Now let us find out x minus y. अभी x minus y ढूंढने के लिए we'll subtract both the equations. So subtracting equation 2 from 1. जो from 1 लिखा है वो पहले लिखना है. तो 1 क्या था? 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501. तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501. उसके बाद सेकेंड वन लिखना है. सेकेंड वन क्या है? 99x प्लस 100y इज इक्वल टू 499.
So second equation is what? 99x plus 101y is equal to 499, which I have written below that. 99x plus 101y is equal to 499. Now while subtracting, अब इन दोनों को subtract करना है तो इसका सबका साइन चेंज होगा. ये प्लस 99 है, इट विल बिकम माइनस. ये प्लस 101 है तो इट विल बिकम माइनस, और ये प्लस 499 विल ऑल्सो बिकम माइनस. Now 101x minus 99x is how much? 2x. उसी तरह इन दोनों को माइनस करेंगे. 99y minus 101y, we will get minus 2y is equal to 501 minus 499 is how much? 2. अभी इसमें कॉमन क्या है? 2 कॉमन है तो टेक 2 कॉमन. 2 इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा? सिर्फ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. नाउ ब्रिंग दिस 2 ऑन दिस साइड. यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और ये 2 जब भी राइट हैंड साइड में आएगा इट विल गो इन द न्यूमरेटर. 2 and 2 विल गेट कैंसल, तो कैंसलेशन के बाद क्या आता है? 1. देयरफॉर x माइनस वाई is equal to how much? 1. तो फाइनल आंसर क्या है? x plus y. x plus y we have got how much? 5. therefore x plus y is equal to 5 and x minus y क्या मिला? 1, and x minus y is equal to 1. Question number 4. Solve the following simultaneous equation graphically. दो equation दिया है, x plus y is equal to 6 और दूसरा equation है x minus y is equal to 4. ये 3 marks का सम है और ये प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सम नंबर 1 सेम ही क्वेश्चन है. तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसा करना है? ग्राफिकली सॉल्व करना है. तो पहला वाला इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. अभी x को राइट हैंड साइड में लेके आओ. जब भी x राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम माइनस एक्स. सो y इज इक्वल टू 6 minus x. Now let us solve and find out the coordinates of x and y. So when x is equal to 0, when x is equal to 0, equation क्या मिला था? y is equal to 6 minus x. Therefore y is equal to what? 6 minus 0. Therefore y is equal to how much? 6. तो जब भी x is equal to 0, when x is equal to 0, y is equal to what? 6. तो 0, 6. Next, when x is equal to 1, y is equal to what? 6 minus x. अभी x के जगह में 1 डालो. Therefore y is equal to 6 minus 1. Therefore y is equal to 6 minus 1 कितना है? 5. तो when x is equal to 1, y is equal to how much? 5. तो coordinates are what? 1 और 5. उसी तरह next, when x is equal to 2, इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स. एक्स की जगह में 2 डालो. देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 माइनस 2. देयरफॉर y इज इक्वल टू हाउ मच? 4. सो व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू हाउ मच? 4. सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y? 2, 4. नेक्स्ट, व्हेन x इज इक्वल टू 3, y is equal to 6 minus x. Therefore y is equal to 6 minus 3. Therefore y is equal to how much? 6 minus 3 is how much? 3. So when x is equal to 3, y is also equal to 3. So what are the coordinates? 3 and 3. So these are the 4 coordinates we have found out of x and y of equation x plus y is equal to 6. We will find out the next one also and then we will plot it on the graph. The next equation is what? x minus y is equal to 4. Therefore ये y को इधर लेके आओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस वाई विल बिकम प्लस 5. और 4 को इस साइड लेके आना है, तो जब भी 4 इस साइड आएगा इट विल बिकम माइनस 4. Now let us find out the coordinates of this equation of x minus y equal to 4. So when x is equal to 0, y is equal to what? Y is equal to x minus 4. Therefore y is equal to x के जगह में 0 डालो. 0 minus 4. Therefore y is equal to what? Minus 4. So when x is equal to 0, y we got what? Minus 4. Therefore the coordinates of x and y is what? 0, minus 4. Now next one, when x is equal to 1, y क्या है? x minus 4.
therefore y is equal to x के जगह में 1 डालो, 1 minus 4, therefore y is equal to how much? 1 minus 4 is equal to how much? Minus 3. So when x is equal to 1, y is equal to minus 3. So what are the coordinates? 1 minus 3. Next one, when x is equal to 2, y is equal to x minus 4, therefore y is equal to x, x नहीं, x की जगह में क्या डालना है? 2. 2 minus 4, therefore y is equal to what? 2 minus 4 is how much? Minus 2. So when x is equal to 2, y is equal to minus 2. So what are the coordinates? 2, minus 2. Now when x is equal to 3, y is equal to x minus 4, therefore y is equal to x के जगह में क्या डालेंगे? 3. 3 minus 4, therefore y is equal to how much? 3 minus 4 कितना है? Minus 1. So when x is equal to 3, y is equal to minus 1. So the coordinates of x and y is how much? 3 and minus 1. Now let us plot this on the graph and let us find out, after plotting both the lines, we will find out the values of x and y. So for plotting the graphs, you have to draw the x-axis and y-axis. x-axis और y-axis दोनों भी draw करना है. Scale लिखना है. Scale क्या है? On both axes 1 centimeter is equal to 1 unit. तो x-axis और y-axis draw करके you have to write over here x and y. Write all the numbers of x-axis and y-axis, and then you plot the graph which you have फाउंड आउट द नंबर कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y. तो पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का ढूंढते हैं. फर्स्ट वन इज व्हाट? 0 6. तो 0 0 x एक्सिस का 0 है और y एक्सिस का 6 है. तो वन कोऑर्डिनेट इज हियर. नेक्स्ट वन इज व्हाट? 1 5 1 5. तो नेक्स्ट इज ओवर हियर. नेक्स्ट इज व्हाट? 2 4 2 4. Next is what? 3 3 3 3. So all the 4 we have. अब ये चारों पॉइंट को ज्वाइन करो. ये क्या है? 0 6. ये क्या है? 1 5. एंड व्हाट इज दिस? 2 4. और ये क्या है? 3 3. और ये किसका, एक कौन सा इक्वेशन का लाइन है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. नाउ नेक्स्ट वन वी विल ड्रॉ. x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट वन इज व्हाट? 0 माइनस 4. तो 0 माइनस 4 यहाँ पे आएगा. दिस इज 1 पॉइंट. नेक्स्ट वन इज व्हाट? 1 एंड माइनस 3. 1 माइनस 3. 1 माइनस 3 यहाँ पे आएगा. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज व्हाट? 2 माइनस 2. 2 minus 2. Next one is here. Last one is what? 3 minus 1. 3 minus 1. That is over here. So this is what? 0 minus 4. This is what? 1 minus 3. और इसका coordinates क्या था? 2 minus 2. And this is what? 3 minus 1. Now let us join all the points. Where the two lines meet, it meets over here.
व्हाट इज़ द लाइन, कौन सा इक्वेशन का लाइन है ये, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो दोनों कहाँ पे मीट होता है, इस पॉइंट में मीट होता है। और ये कौन सा पॉइंट है, 5, पहला क्या है 5 और y एक्सिस का क्या है 1, तो 5 and 1 is the solution of this equation। तो x का वैल्यू क्या है 5 और y का वैल्यू क्या है 1। So answer you have to write down over here in the end. X is equal to what, 5 and y is equal to what, 1 is the solution of the given equation। Solution यहाँ पे है जहाँ पे दोनों line meet होता है, that is the solution of both the equation। तो x is equal to what, 5 and y is equal to what, 1। तो x is equal to 5 and y is equal to 1 is the solution of the given equations। Question number 5. In an agricultural field, the ratio of salary of skilled and unskilled workers is 5:4. Total salary of one day of both of them is rupees 900. Find daily wages of skilled and unskilled workers। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है और ऐसे ही सेम सम जो है प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 7 सम नंबर 5 है, सिर्फ नंबर्स चेंज किया हुआ है, मेथड सेम ही है। क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, डेली वेजेस यानी डेली सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। सिंस डेली सैलरी ढूंढना है स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स का, so let the daily salary of skilled workers, let us take that as rupees x. The daily salary of unskilled workers, we will take that as rupees y. According to the first condition में क्या दिया है, the ratio of the salary of skilled and unskilled workers is 5:4. The ratio of the skilled and unskilled workers, that is x upon y is equal to how much? What is the ratio? 5:4. So that is equal to 5/4. Now cross multiply, x into 4 will be how much? 4x is equal to 5 into y is equal to how much? 5y। अब ये 5y को इस साइड लेके आओ तो what we'll get 4x plus 5y, जब इधर आएगा it will become minus a 5y, that is equal to 0। Let this be equation 1। Now according to the second condition के according से क्या दिया है, total salary of one day of both of them is rupees 900। यानी skilled workers का और अनस्किल्ड वर्कर्स का डेली वेजेस अगर देखेंगे तो कितना है, रुपीज़ 900। तो स्किल्ड वर्कर का कितना है, x, और अनस्किल्ड वर्कर्स का कितना है, y, that is equal to how much, 900। Let this be equation 2। Now if you see equation 1 और equation 2, वेरिएबल x का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, उसी तरह वेरिएबल y का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करते हैं। लेट अस मेक द वेरिएबल y का कोएफिशिएंट सेम। यहाँ पे वेरिएबल y का कोएफिशिएंट क्या है, 5। सो वी विल मेक दिस ऑल्सो 5। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। तो 5 इंटू ये पूरा लिखना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 900। सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू वाई 5y, दैट इज इक्वल टू 20, 5 9 45, so 4500। so let this be equation 3। now if you compare equation 1 and 3, 1 और 3 को कंपेयर करेंगे तो वेरिएबल y का जो कोएफिशिएंट है सेम है, एक माइनस है एक प्लस है। सो विल ऐड बोथ द इक्वेशन। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। 1 क्या है, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 5y, that is equal to 4000, not 0, 4500। now when you add minus 5y or plus 5y will get cancelled। 4x plus 5x कितना है, 9x, that is equal to 0 plus 4500 is how much, 4500। अब ये 9 को 4500 के नीचे लेके आओ, so what you will get, x is equal to 4500 upon 9।
4500 goes in 9's table, 9 ones are 9, 500 is equal to how much? 4500. तो x का वैल्यू मिल गया, x is equal to how much? 500. तो स्किल्ड लेबर का डेली वेजेस कितना है? ₹500. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डेली वेजेस ऑफ अनस्किल्ड लेबर्स. So putting x is equal to 500 in equation 2. In equation 2, तो equation 2 क्या है? x plus y is equal to 900. x plus y is equal to 900. कोई भी इक्वेशन में लिख सकते हैं, 1 में भी डाल सकते हैं, 2 में भी डाल सकते हैं, 3 में भी डाल सकते हैं, लेकिन इक्वेशन 2 ज़्यादा इजी है. सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 500 इन इक्वेशन 2. अभी x के जगह में 500 डालो. 500 प्लस y इज इक्वल टू 900. सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? y इज इक्वल टू 900 और प्लस 500 को इस साइड लेके आओ, इट विल बिकम माइनस 500. सो y इज इक्वल टू हाउ मच? 900 माइनस 500, दैट्स इक्वल टू 400. तो डेली वेजेस ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स इज इक्वल टू हाउ मच? ₹400. तो फाइनल आंसर क्या आएगा? डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स आर ₹500 and ₹400. Next lesson, lesson number 2, quadratic equation. First question, choose a correct alternative and write its alphabet with sub-questions number. क्वेश्चन क्या है? आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विच वन इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये चारों ऑप्शन में से एक इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 सम नंबर 2 है. तो आंसर क्या है? ए. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. x square plus 4x is equal to 11 plus x square. This is not a quadratic equation. बाकी सब ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है इट्स अ quadratic equation. एक्सप्लेनेशन क्या है? Now this was not a quadratic equation. X square plus 4x is equal to 11 plus x square. Now bring everything, right hand side में जो भी है वो left hand side में लेके आओ. तो x square plus 4x, 11 जब भी इधर आएगा तो इट विल बिकम -11 और प्लस एक्स स्क्वायर जब भी इधर आएगा इट विल बिकम माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा तो बचेगा क्या है? 4x minus 11 is equal to 0. So this is not a quadratic equation. Quadratic equation में highest power of the variable, that is यहाँ पे variable क्या है? x. तो highest power of the variable x should be 2, यानी स्क्वायर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है ही नहीं, दोनों भी कैंसिल हो गया. तो x टू द पावर ऑफ 2 है ही नहीं. या तो x स्क्वायर रहना चाहिए, या तो 2x स्क्वायर, नहीं तो 3x स्क्वायर, एनीथिंग, मगर x स्क्वायर रहना चाहिए. बट x स्क्वायर इज नॉट देयर, देयरफॉर दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Question number 2, write the following quadratic equation in standard form. Question क्या है? 2y is equal to 10 minus y square. इसे standard form में लिखना है. ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है और ये प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सम नंबर 1 है. तो क्वेश्चन में इक्वेशन क्या दिया है? 2y is equal to 10 minus y square. Same thing I have written over here. Now bring whatever is on the right hand side, bring it on the left hand side. So what you'll get? 2y minus 10 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो 10 जब भी इधर आएगा इट विल बिकम -10 और माइनस वाई स्क्वायर जब भी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा इट विल बिकम प्लस वाई स्क्वायर. तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? पहले स्क्वायर लिखना है, वाई स्क्वायर, उसके बाद 2y, उसके बाद -10 इज इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. Question number 3, solve the following quadratic equation by factorization method. Equation क्या है? x square minus 15x plus 54 is equal to 0. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और ये प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सम नंबर 1 है. तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है. तो इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे क्या है? प्लस 54. तो 2 नंबर ऐसा ढूंढना चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करके वी हैव टू गेट 54 और सिंस इट इज़ प्लस इसके लिए दोनों को ऐड करके वी शुड गेट 15. तो विच आर द 2 नंबर्स? 9 और 6. 9 6 जा कितना है? 54 और 9 प्लस 6 कितना है? 15. अभी यहाँ पे मिडल नंबर माइनस है,
मिडल वाला जो ये है वो माइनस है तो दोनों भी माइनस रहेगा। सिंस इट इज़ प्लस, इसके लिए दोनों का साइन सेम रहेगा, -9 -6। तो योर क्वेश्चन विल बिकम एक्स स्क्वायर। अभी -15x नहीं लिखना है, -9x -6x +54 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर -9x में x कॉमन है, देयरफॉर x बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा, x -9। और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, -6 कॉमन है, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x -9 इज इक्वल टू 0। -6 इंटू एक्स -6x -6 इंटू -9 +54। अभी दो ब्रैकेट डालो, इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में जो सेम है, इन दोनों ब्रैकेट में x -9 सेम है, तो एक में x -9 डालो और दूसरा ब्रैकेट में ये बाहर वाला डालो, x -6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x -9 इज इक्वल टू 0 और x -6 इज इक्वल टू 0। अभी -9 को राइट हैंड साइड में लेके आओ, तो x इज इक्वल टू क्या है, -9 जब भी राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम +9, और x इज इक्वल टू और a -6 को राइट हैंड साइड में लेके आओ, -6 जब भी राइट हैंड साइड में आएगा इट विल बिकम +6। तो आंसर क्या है, 9 and 6 are the roots of the given quadratic equation. Question number 4. Complete the following activity to solve the quadratic equation x square plus 8x minus 48 is equal to 0 by completing square method. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड सम है, और पेज नंबर 39 का एग्जाम्पल टू सेम सम है। तो इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अभी सिंस वी हैव टू सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो इसका मेथड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, उसके बाद आएगा प्लस b/2 द होल स्क्वायर, फिर माइनस b/2 द होल स्क्वायर, उसके बाद -48 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस b के जगह में क्या लिखना है, 8, b इज़ व्हाट, 8 ओवर हियर, सो 8/2 द होल स्क्वायर -8/2 the whole square -48 is equal to 0. 8 goes in 2's table, 2 4s are, यहाँ पे भी 2 4s are 8 है। So what we'll get, x square plus 8x, 4 the whole square क्या है, 16। So x square plus 8x plus 16, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, -4 the whole square is how much, 16, तो यहाँ पे 16 आएगा, -16 -48 is equal to 0। that therefore x plus 4 the whole square is equal to how much, -16 -48 is equal to how much, 64, that is equal to 0। now how we got this x plus 4 the whole square, x square किसका स्क्वायर है, x का, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, और मिडिल में प्लस है तो x प्लस 4 द होल स्क्वायर -64 इज इक्वल टू 0। अब ये -64 को इस साइड लेके आओ तो इट विल बिकम +64, तो x प्लस 4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। नाउ टेक द स्क्वायर रूट। अभी यहाँ पे क्या मिला था, x प्लस 4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लो। The square root of x plus 4 the whole square will be how much, x plus 4, और square root of 64 is how much, plus or minus 8। therefore x plus 4 एक बार plus 8 लिखना है, और क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी -8 लिख चुका है, तो और x plus 4 is equal to -8। I repeat once more, x plus 4 is equal to 8 और x plus 4 is equal to -8। एक बार +8 लेना है जो यहाँ पे लिया हुआ, और एक बार -8 लेना है। Now bring this 4 on this side, so what you'll get, x is equal to 8 plus 4 जब भी इधर आएगा तो it will become -4, और x is equal to -8 और plus 4 इधर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -4। तो x का वैल्यू क्या है, 8 - 4 क्या है, x is equal to 4, और -8 - 4 कितना है,
-12, तो इस बॉक्स में आएगा -12, तो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -12. Question number 5. Product of Shraddha's age 2 years ago and 3 years ends is 84. Find her present age. तो अब इसका present age ढूंढना है. ये 3 marks का question है और practice set 2.6 का question number 1 सेम question है, सिर्फ नाम चेंज किया हुआ है. टेक्स्ट बुक में जो नाम दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 में जो नाम दिया वो प्रगति है. बोर्ड एग्जाम में प्रगति को चेंज करके यहाँ पे श्रद्धा लिखा हुआ है. Now let Shraddha's present age be x years. 2 years ago श्रद्धा का एज क्या रहेगा? अगो है इसके लिए x -2, इसका प्रेजेंट एज से -2 करेंगे तो 2 years ago उसका एज x -2 रहेगा. उसी तरह 3 years hence श्रद्धा's एज विल बी हाउ मच, यानी आगे 3 साल के इन फ्यूचर आफ्टर 3 years her एज विल बी हाउ मच, x +3 years. तो 2 years ago Shraddha's age was x -2 years and 3 years hence Shraddha's age will be x +3 years. और इधर लिखा है प्रोडक्ट ऑफ Shraddha's age 2 years ago and 3 years hence is 84. यानी प्रोडक्ट का मतलब क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, 84. सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन व्हाट वी विल गेट, x plus 3 into x minus 2. प्रोडक्ट का मतलब क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू कितना रहना चाहिए, 84. अभी एक बार x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, x -2, और एक बार +3 से x -2 को मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू 84. व्हेन यू मल्टीप्लाई x into x, x square, plus x into -2 will become -2x, plus 3 into x will become plus 3x, plus into minus, -3 2s are 6 is equal to 84. Therefore, x square minus 2x plus 3x will become what, plus x, -6 और 84 को इस साइड लेके आओ, -84 is equal to 0. Therefore, x square plus x और -6 minus 84 will become how much, -90 is equal to 0. अभी -90 का दो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसे मल्टीप्लाई करके 90 मिलना चाहिए. सिंस इट इज़ माइनस, तो वो दो नंबर को माइनस करके वी शुड गेट 1. यहाँ पे x है तो यानी 1x है. तो व्हाट आर द टू नंबर्स, 9 और 10. तो 9 into 10 is how much, 90, और 10 minus 9 is how much, 1. अभी सिंस द मिडिल नंबर इज प्लस, तो बड़ा नंबर को प्लस डालो और छोटा नंबर को माइनस. सो दिस इक्वेशन विल बिकम x स्क्वायर -9x प्लस 10 minus 90, 10x, minus 9x plus 10x minus 90 is equal to 0. अभी इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x माइनस 9. इन दोनों में कॉमन क्या है, +10, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. तो पुट 2 ब्रैकेट्स इज इक्वल टू 0. एक ब्रैकेट में क्या डालना है, x प्लस 10, और दूसरा ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस 9. देयरफॉर x प्लस 10 is equal to 0 और x minus 9 is equal to 0. Therefore, x is equal to what? Plus 10 इस साइड आएगा तो it will become minus 10, और x is equal to what? Minus 9 जब इस साइड आएगा तो it will become plus 9. But age cannot be negative. अभी x क्या था, present age of Shraddha. You can see over here. x क्या था, श्रद्धा's प्रेजेंट एज वी हैड टेकन एज x years, तो यानी x क्या हो गया, श्रद्धा का प्रेजेंट एज है. लेकिन एज कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, बट एज कैन नॉट बी नेगेटिव. तो x इक्वल टू -10 वी कैन नॉट टेक दैट. तो x इक्वल टू -10 इज नॉट पॉसिबल. तो x क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 9. सो श्रद्धा's प्रेजेंट एज इज हाउ मच, 9 years.
Question number 5. Three conditions are given below. Write the quadratic equation for each of them to satisfy that condition. First condition क्या है? If discriminant is delta is equal to 0. Second, if discriminant delta is greater than 0. और next one, if discriminant delta is less than 0. ये 3 marks का question है. तो first we have to satisfy which condition? If discriminant delta is equal to 0. For that we will take this equation 2x square plus 4x plus 2 equal to 0. Comparing equation 2x square plus 4x plus 2 equal to 0 with ax square plus bx plus c equal to 0. A we will get what? 2. B is what? 4. And C is what? 2. डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट? बी स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज व्हाट? 2 इंटू सी इज व्हाट? 2. So delta is equal to what? 4 square is how much? 16 minus 4 2s are 8, 8 2s are 16. Therefore delta is equal to what? 16 minus 16, 0. So we are getting the first discriminant delta is equal to 0. तो delta equal to 0 मिला है. Therefore the required quadratic equation is what? 2x square plus 4x plus 2 equal to 0. 2x square plus 4x plus 2 equal to 0. Next one is what? B. If discriminant delta is greater than 0. If discriminant delta is greater than 0 के लिए first और last वाला same ही रखो. 2x square plus 2. 2x square plus 2. Since greater than 0 लेना है, इसके लिए जो middle वाला number जो 4 है वो 4 से ज़्यादा लेना. 5 6 7 anything you can take. तो मैंने यहाँ पे 7 लिया है. 2x square plus 7 plus 7x plus 2 equal to 0. Now comparing equation 2x square plus 7x plus 2 equal to 0 with ax square plus bx plus c equal to 0. A is what? 2. B is equal to what? 7. C is equal to what? 2. डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. अभी b क्या है? इक्वल टू 7 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है? 2 और इंटू सी क्या है? 2. सो डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट? 7 स्क्वायर कितना है? 49 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16. Therefore delta is equal to what? 49 minus 16 is equal to how much? 33. So we have got delta greater than 0. यहाँ पे लिखो. यहाँ पे क्या मिला था? delta is equal to 0. वही discriminant चाहिए था. Now here we have got delta is greater than 0. So what is the required quadratic equation over here? 2x square plus 7x plus 2. 2x square plus 7x plus 2 is equal to 0. Next one is what? If discriminant delta is less than 0. अभी less than 0 के लिए भी वही नंबर रखो. 2 और 2. लास्ट फर्स्ट वाला 2 और लास्ट वाला भी 2. यानी A भी 2 और C भी 2. सिंस वी वांट लेस देन 0, इसके लिए मिडिल वाला टर्म जो है यहाँ पे अपन यहाँ पे 4 लिया था और यहाँ पे ग्रेटर देन 4 लिया था क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 0 चाहिए था. अब यहाँ पे लेस देन 0 चाहिए. इसके लिए 4 से छोटा नंबर लेना जैसे कि 3 2 1. आई हैव टेकन ओवर हियर 3. सो 2x square plus 3x plus 2 is equal to 0. Comparing equation 2x square plus 3x plus 2 equal to 0 with ax square plus bx plus c equal to 0. A is equal to what? A is equal to 2, B is equal to 3 and C is equal to 2. डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? b square minus 4ac. Now substitute the value. So what you will get? b के जगह में क्या आएगा? 3 the whole square minus 4 into a कितना है? 2 into c कितना है? 2. अभी 3 the whole square is what? 9 minus 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16. So that is equal to how much? 9 minus 16 is equal to how much? Minus 7. So delta over here is less than 0. So the required quadratic equation is what? 2x square plus 3x plus 2 equal to 0. 2x square plus 3x
प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में वही पूछा था, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर ईच ऑफ देम टू सेटिस्फाई द कंडीशन। तो पहला वाला डेल्टा इक्वल टू 0 के लिए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, 2x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। उसी तरह नेक्स्ट वन, डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए क्या चाहिए था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ 2x² प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। और सी क्या था, क्वेश्चन सी क्या था, लेस देन 0, डेल्टा इज़ लेस देन 0, उसके लिए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन 2, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP इज़ 560। AP क्या है, 2, 11, 20, 29 एंड सो ऑन। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। और पेज नंबर 64 का एग्जाम्पल 2 जो है वो सेम क्वेश्चन है। तो 2, 11, 20, 29 जो यहाँ पे लिखा है वही मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड सो ऑन इज़ इन AP। First A is what, first term is A, तो A is equal to what, 2. D is what, 11 minus 2, 11 minus 2, that's equal to how much, 9. Now in the question they have said which term of the following AP is 560, तो Tn हो गया 560, और which term ढूंढना है यानी n ढूंढना है। तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, Tn is equal to A plus n minus 1 into D, this is the formula. Now substitute the value, Tn कितना है 560 इज इक्वल टू A कितना है 2 प्लस n ढूंढना है -1, D कितना है 9। Therefore 560 is equal to 2 plus 9 into n, 9n, minus 9 into 1, 9. Therefore 560 is equal to, अभी +2 -9 कितना है -7, तो 9n -7। अभी -7 को इस साइड लेके आओ, तो 560 प्लस 7, -7 जब इस साइड आएगा तो इट बिकम +7 इज इक्वल टू 9n। Now 560 plus 7 is how much, 567 is equal to 9n. Therefore n is equal to how much, अभी 9 को 567 के नीचे लेके आओ, और 567 जो है वो 9 के टेबल में जाता है, 9 1 जा 9, 63 is equal to how much, 567. Therefore n का वैल्यू कितना मिला, 63. Therefore आंसर क्या रहेगा, 63rd term. 63rd term of AP is 560. Question 3, in an AP sum of 3 consecutive terms is 27 and their product is 504. Complete the following activity to find the terms. तो ये एक्टिविटी बेस्ड सम है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सेम क्वेश्चन है। सो लेट वी हैव टू फाइंड आउट द 3 consecutive terms. So let the 3 consecutive terms be A minus D, A plus D. अभी क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ 3 consecutive terms is 27, यानी इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलना चाहिए, 27. So we will add all this 3. So therefore A minus D plus A plus D is equal to how much, 27. यहाँ पे minus D plus D कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1 2 3, तो 3A is equal to 27. Therefore 3 को 27 के नीचे लेके आओ, A is equal to 27 upon 3. 27 goes in 3's table, 3 1s are 3 9s are 27. Therefore A is equal to 9. तो A का वैल्यू मिल गया, अभी D का वैल्यू ढूंढना है। A और D का वैल्यू ढूंढेगा तो we will get all the 3 terms. So now next we will find out the value of D. In the question itself they have given their product is 504, यानी 3 consecutive terms को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो what we'll get, 504. अभी इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। Similarly A minus D into A plus D is equal to how much, 504. Therefore अभी A माइनस डी इंटू A प्लस डी क्या हो गया, A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू A, दैट इज इक्वल टू 504.
अभी a का वैल्यू क्या मिला था 9, तो a स्क्वायर क्या हो गया 9 स्क्वायर, d ढूंढना है तो माइनस डी स्क्वायर और a के जगह में क्या लिखना है 9 इज इक्वल टू 504। अभी 9 स्क्वायर क्या है 81, 81 माइनस डी स्क्वायर इंटू 9 इज इक्वल टू 504। देयरफॉर अभी 9 को 504 के नीचे लेके आओ, 81 minus d square is equal to 504 divided by 9. अभी 504 goes in 9's table, 9 ones are 9, 56 is 504. Therefore 81 minus d square is equal to how much 56. अभी 56 को इस साइड लेके आओ तो प्लस 56 जब इधर आएगा तो माइनस 56 हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर को उस साइड लेके जाओ तो माइनस डी स्क्वायर जब इधर जाएगा तो इट विल बिकम पॉजिटिव, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस डी स्क्वायर व्हेन इट गोज ऑन दिस साइड इट बिकम्स प्लस डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 81 और 56 जब इधर आएगा इट विल बिकम माइनस 56। देयरफॉर d square is equal to how much 81 minus 56 is how much 25। अभी d square is equal to 25 दिया मिला है। now find the square root of both of them, दोनों साइड स्क्वायर रूट लो। स्क्वायर रूट ऑफ d स्क्वायर क्या है d और स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या है प्लस माइनस 5, therefore d is equal to plus minus 5। now we have got all both the values, not all the three। a का वैल्यू मिल गया, a is equal to what 9 और d का वैल्यू क्या है +5, नहीं तो d is equal to -5। thus by putting a is equal to 9 and d is equal to 5 we get three consecutive terms as 4, 9, 14। अभी 4, 9, 14 कैसा मिला, we know that the three consecutive terms क्या था a minus d that is equal to what, a कितना था a is equal to 9, 9 है, you can see over here a कितना मिला था 9 और d कितना है, फर्स्ट वी विल टेक d is equal to +5, so a minus 5 a की जगह में क्या डालना है 9, 9 minus 5 दैट्स इक्वल टू व्हाट 4, तो उस तरह 4 इस तरह मिला है और a तो ऑलरेडी पता है a इज इक्वल टू व्हाट 9, तो नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा 9। नेक्स्ट क्या है a प्लस d था, सो दैट इज इक्वल टू 9 plus 5 that's equal to 14, so next number is what 14। उसी तरह putting a equal to 9 and d equal to -5 we get the three consecutive terms as 14, 9 and 4। same way you have to find out a minus d that's equal to what, a minus d that's equal to what 9 minus 5 because this time we have taken -5, so 9 minus into minus plus 5 that's equal to 14। इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या रहेगा 14 और a क्या है 9, तो नेक्स्ट टर्म इज व्हाट 9। नेक्स्ट a plus d that's equal to 9 minus 5 that's equal to 4। so what are the three consecutive terms if a is equal to 9 and d is equal to -5, 14, 9, 4। और अगर a इज इक्वल टू 9 और d इज इक्वल टू +5 है तो थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर टर्म्स क्या रहेगा 4, 9, 14। सम नंबर 4, if first term of an AP is P, second term is Q and last term is R, then show that the sum of all the terms is P plus R into Q plus R minus 2P upon 2Q minus P। यहाँ पे Q minus P है, you can see over here। So sum of all the terms is what, P plus R into Q plus R minus 2P upon 2 into Q minus P। तो ये क्या है Q minus P। if you can't understand over here, I've written over here Q minus P। now this sum is same like problem set 3 question number 11। instead of P, Q and R they have given A, B and C। sum same ही है, method भी same है, ये 3 marks का question है। now first term of an AP is what P, so T1 is what P। second term is what Q, so T2 is equal to what Q and last term is R, that is Tn is equal to R and D will be what, D is equal to Q minus P, Q minus P।
Now first we will find out n. For that we will use the formula Tn is equal to a plus n minus 1d. तो पहले क्या ढूंढना है, n ढूंढना है, और n ढूंढने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. Tn क्या है, r. Therefore r इज इक्वल टू a क्या है, a इज p. फर्स्ट टर्म जो रहता है वो a रहता है, तो a के जगह में आएगा p प्लस n माइनस 1, और d क्या है, q माइनस p. q माइनस पी. अब ये p को इस साइड लेके आओ, प्लस p जब इधर आएगा इट विल बिकम माइनस पी इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू क्यू माइनस पी. अभी q माइनस पी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ. जब भी q माइनस पी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा इट विल गो इन द डिनोमिनेटर. वाई, बिकॉज हियर इट इज मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे क्या बचेगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू r माइनस पी upon q minus p. Therefore n is equal to what, r minus p upon q minus p. और माइनस 1 जब इधर आएगा इट विल बिकम व्हाट, प्लस 1. Therefore n is equal to what, यहाँ पे r माइनस p था और प्लस q माइनस पी को उधर लेके जाएंगे तो इट विल बिकम व्हाट, q माइनस पी इंटू 1. सो q माइनस पी अपॉन डिनोमिनेटर क्या रहेगा, q माइनस पी. नाउ इफ़ यू सी माइनस पी दो बार है और r प्लस क्यू बच जाएगा, तो r प्लस क्यू माइनस 2p. दो p है, माइनस p विल बिकम व्हाट, माइनस 2p. और नीचे क्या आएगा, q minus p. Now we have got the value of n. n का वैल्यू क्या मिला, r plus q minus 2p अपन q minus p. Now we will find out, जो भी क्वेश्चन में पूछा है, sum of all the terms ढूंढना है. और आंसर क्या मिलना चाहिए, sum of all the terms p plus r इंटू क्यू प्लस आर माइनस 2p अपॉन 2 इंटू क्यू माइनस पी. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टी, नॉट टी, एन अपॉन 2 इंटू टी वन प्लस टी एन, दैट इज़ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो n क्या मिला था, r प्लस क्यू माइनस 2p अपॉन क्यू माइनस पी. तो n के जगह में ये लिखना है r माइनस r प्लस क्यू माइनस 2p अपॉन q माइनस p. ये हो गया n. यहाँ पे n अपॉन 2 है तो n लिखा और अपॉन 2 इंटू t1 क्या था, फर्स्ट टर्म क्या था, p था, p फर्स्ट टर्म वॉज व्हाट, p. तो यहाँ पे आएगा p प्लस tn क्या है, r, तो p प्लस r. सो एस एन इज इक्वल टू व्हाट, पहले ये न्यूमरेटर लिखो, r प्लस क्यू माइनस 2p अपॉन q माइनस p. और ये क्या है, 2 अपॉन 1 है, डिनोमिनेटर में 2 है यानी 2 अपॉन 1 है. जब ये न्यूमरेटर में जाएगा 2 अपॉन 1 विल बिकम 1 अपॉन 2. और क्या बचा है न्यूमरेटर में, p प्लस r. Therefore Sn is equal to what, r plus q minus 2p, r प्लस q माइनस 2p और इंटू p प्लस आर. भाई क्वेश्चन में यही पूछा था, सम ऑफ द ऑल टर्म्स इज व्हाट, p प्लस आर, q प्लस आर माइनस 2p. तो न्यूमरेटर में वैसे ही लिखो, पहले p प्लस आर इंटू q प्लस आर माइनस 2p, q प्लस आर माइनस 2p, q प्लस आर माइनस 2p अपॉन क्या है, 2 इंटू क्यू माइनस पी, 2 इंटू क्यू माइनस पी, 2 इंटू क्यू माइनस पी. तो यही प्रूव करना था कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज व्हाट, p प्लस आर इंटू क्यू प्लस आर माइनस 2p इंटू क्यू प्लस आर माइनस 2p अपॉन 2 into q minus p upon 2 into q minus p. So we have got that answer which they had asked to prove. Lesson number 4, financial planning. First sum, courier service agent charged total rupees 590 to courier a parcel from Nasik to Nagpur.
In the tax invoice, taxable value is rupees 500, on which CGST is rupees 45 and SGST is rupees 45. Complete the following activity to find the rate of GST charged for this service. ये 2 मार्क का सम है और पेज नंबर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 86 का एग्जाम्पल 2 सेम सम है. ये एक्टिविटी बेस्ड सम है. अभी इसमें क्या दिया है कि कुरियर सर्विस एजेंट ने कितना चार्ज किया, टोटल रुपीज़ 590 टू पार्सल फ्रॉम नासिक, टू पार्सल द कुरियर फ्रॉम नासिक टू नागपुर. और टैक्स इनवॉइस यानी बिल में टैक्सेबल वैल्यू कितना है, जो भी उसमें जो कुरियर पार्सल था उसका टैक्सेबल वैल्यू रुपीज़ 500 था और उसमें उन लोग ने CGST कितना रुपीज़ लगाया, रुपीज़ 45 एंड SGST कितना लगाया, रुपीज़ 45. सो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द रेट ऑफ GST चार्ज. तो GST कितना चार्ज किया, कितना परसेंटेज चार्ज किया, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. इट इज़ एन एक्टिविटी बेस्ड सम. टोटल GST कितना है, CGST प्लस SGST. CGST कितना है, रुपीज़ 45, तो इस बॉक्स में आएगा रुपीज़ 45 प्लस SGST भी 45 जो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है. 45 प्लस 45 कितना है, रुपीज़ 90. तो रेट ऑफ GST इज इक्वल टू हाउ मच, 90 अपॉन 500 इंटू 100. अब ये GST रुपीस में है, वी हैव टू फाइंड आउट GST इन परसेंटेज. सो परसेंटेज में ढूंढने के लिए 90 अपॉन 500 इंटू 100. 90 जो टोटल GST मिला था, 500 जो उसका वैल्यू था पार्सल का, उसका वैल्यू कितना था 500 और इंटू 100. अभी आई शो द कैंसलेशन ओवर हियर. 90 अपॉन 500 इंटू 100. 2 ज़ीरो कट हो गया, 95 के टेबल में जाता है, 5 1 ज़ा 5, 18 इज इक्वल टू 90. सो रेट ऑफ GST इज हाउ मच, 18%. Therefore rate of GST charged by the agent is 18%. Second sum, face value of one share is rupees 100 and premium is rupees 10. Find the market value of the share. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. फेस वैल्यू कितना है, रुपीज़ 100. Premium is how much, rupees 10. Market value we have to find out. Find the market value of the share. तो market value ढूंढना है. तो market value ढूंढने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, market value is equal to face value plus premium. face value कितना है, 100 प्लस प्रीमियम कितना है, 10 रुपीज़ प्लस 10. तो मार्केट वैल्यू कितना हो गया, 100 प्लस 10, 110. तो रुपीज़ 110 is the market value. तो आंसर क्या आएगा, the market value of the share is rupees 110. Question number 3, market value of a share is rupees 200. If the brokerage rate is 0.3%, then find the purchase value of the share. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और ये प्रैक्टिस सेट 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है. मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज हाउ मच, रुपीज़ 200. ब्रोकरेज कितना है, 0.3%. फाइंड द परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर. तो परचेज वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट. ब्रोकरेज यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है, तो कन्वर्ट दिस इनटू रुपीज़. रुपीज़ में फाइंड आउट करो कि ब्रोकरेज कितना है. तो हाउ टू फाइंड आउट ब्रोकरेज इन रुपीज़, 0.3% ऑफ 200. 200 का 0.3% कितना है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो 0.3% मीन्स व्हाट, 0.3 अपॉन 100 ऑफ का मतलब इनटू 200. 2 ज़ीरो कट हो गया, सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 0.3 इंटू 2 इज इक्वल टू हाउ मच, 0.6. सो ब्रोकरेज इज इक्वल टू हाउ मच, रुपीज़ 0.6. Now purchase value, we have to find out what purchase value. The purchase value of the share is how much, market value plus brokerage. Market value कितना है, 200. तो 200 plus brokerage कितना है, 0.6. So purchase value of the share is how much, rupees 200.6. So the purchase value of the share is rupees 200.6. Question number 4. Shri Shivaji Rao has purchased 150 shares of face value rupees 100 for market value of rupees 120.
कंपनी हैज़ पेड 7% डिविडेंड, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इज इन्वेस्टमेंट। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सेम ही है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 में जो नाम है वो श्री शांतिलाल है, बोर्ड पेपर में नाम को बदली करके श्री शिवाजी राव रखा है, बाकी सब सेम ही है। और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें ढूंढना क्या है, रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना है ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। अभी रेट ऑफ रिटर्न ढूंढने के लिए इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। सो पहले हमें सम इन्वेस्टेड और टोटल डिविडेंड मतलब कितना उसने पैसा खर्चा किया, इन्वेस्ट किया 150 शेयर्स खरीदने के लिए, वो ढूंढना है। और टोटल डिविडेंड उसको 150 शेयर्स में कितना मिला, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ये दोनों मिलने के बाद वी कैन फाइंड आउट रेट ऑफ रिटर्न। So number of shares purchased. How many shares he purchased? He has purchased 150 shares. So number of shares purchased कितना है, 150. Face value कितना है, face value of one share is ₹100. And market value उसी शेयर का कितना है, ₹120. Dividend कितना मिला, 7%. और ढूंढना क्या है, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इज इन्वेस्टमेंट। द रेट ऑफ रिटर्न वी हैव टू फाइंड आउट। नाउ पहले ही मैंने बताया था सम इन्वेस्टेड मतलब 150 शेयर्स खरीदने के लिए उसने कितना पैसा खर्चा किया, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 150 इनटू मार्केट वैल्यू कितना है, 120। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेट, 18,000 रुपीज़। तो 150 शेयर्स खरीदने के लिए हाउ मच सम ही इन्वेस्टेड, 18,000। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट डिविडेंड। टोटल डिविडेंड उसको कितना मिलेगा 150 शेयर्स के लिए, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। यहाँ पे डिविडेंड्स परसेंटेज में दिया हुआ है, इस परसेंटेज को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिविडेंड ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू 7% ऑफ फेस वैल्यू। 7% का मतलब क्या है, 7/100 इंटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपीज़, 100। अब ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा कितना, 7। सो डिविडेंड ऑफ 1 शेयर इन रुपीज़ विल बी हाउ मच, ₹7। अभी उसने एक शेयर तो नहीं खरीदा था, 150 शेयर्स खरीदा था। तो डिविडेंड ऑफ 150 शेयर इज हाउ मच, 150 इंटू 7। व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट 1050. Now we can find out rate of return. Rate of return is formula क्या है, total dividend upon sum invested into 100. Total dividend कितना मिला, 1050 और sum invested is how much, 18,000. So upon 18,000 into 100. अब ये 2 0 और ये 2 0 कट हो गया, ये 1 0 और 1 0 कट हो गया। 18 और 105 goes in 3 stable, 3 6 18, 3 35 is how much, 105. So we have got 35 upon 6. अब ये 35 को 6 से डिवाइड करो, 35 divided by 6, 6 5 30 minus 5 remainder, put a point and put a 0. 6 8 48 minus 2 remainder, 0 डालो, 3 18, 6 3 18 माइनस करो, वापस 2 मिलेगा। सो दैट मीन्स यूल गेट 5.83333 एंड सो ऑन। तो फाइनल आंसर क्या है, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 558.3%. So rate of return on Shivaji Rao's investment is 58.3%. Lesson number 5, probability. First question, choose the correct alternative. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स विच कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो आंसर है ऑप्शन बी 2.0। तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन बी 2.0। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट फ्रॉम 0 to 1
और 0% to 100%। अभी ये probability of any event क्या है, 0 से लेके 1 तक की है और ये 1 से ज़्यादा है, 2 है, so therefore this is not a probability। नहीं तो 0% to 100% रहना चाहिए। This is given in पेज नंबर, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 125 में टॉप में दिया हुआ है। Question 2. A card is drawn from a well-shuffled pack of 52 playing cards. Complete the following activity to find the probability of the following events. A. A red card. B. A face card. ये 3 marks का question है और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 124 का एग्जाम्पल 3 सेम ही है। So let us start. Let S be the sample space. So NS is equal to how much? 52. Why 52? क्योंकि प्लेइंग पैक ऑफ कार्ड्स में कितना कार्ड्स है 52, सो एन एस इज इक्वल टू 52। अभी इवेंट ए ढूंढता है। व्हाट इज इवेंट ए? अ रेड कार्ड, मतलब अ कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड। टोटल रेड कार्ड कितना है? 26। हाउ 26? अगर पैक ऑफ कार्ड्स में देखेंगे तो 2 टाइप ऑफ रेड कार्ड्स, एक तो डायमंड और दूसरा है हार्ट। डायमंड में 13 कार्ड्स हैं और हार्ट में भी 13 कार्ड्स है, तो 13 + 13 26। तो एन ए इज इक्वल टू हाउ मच? 26। Now we have to find out the probability that the card drawn is a red card. So formula क्या है probability find out करने के लिए? PA is equal to NA upon NS. That is a formula. So let us substitute that. PA is equal to what? 26 upon 52. 26 upon 52. This will go in 26 table. 26 ones are 26 twos is 52. So PA is equal to what? 1 upon 2. So PA probability of event A is what? 1 upon 2. Now next one we will find out that the card drawn is a face card. So event B is what? Card drawn is a face card. Total face card is equal to how much? 12, which is already given. तो NB क्या हो गया? 12। फेस कार्ड मतलब जैसे कि जैक, किंग एंड क्वीन, इसको फेस कार्ड बोलते हैं। तो ये अगर टोटल पैक ऑफ कार्ड्स में देखेंगे तो कितना है? 12 है। तो PB फॉर्मूला क्या है? टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज़ अ फेस कार्ड, उसका फॉर्मूला है PB इज इक्वल टू NB अपॉन NS। देयरफॉर PB इज इक्वल टू व्हाट? 12 अपॉन टोटल पैक ऑफ कार्ड्स में NS कितना था? NB इज इक्वल टू 12 और NS कितना है? 52। सो 12 and 52 goes in 4's table. 4 3s are 12, 4 13s is 152. So answer is what? 3 upon 13. So PB is equal to what? 3 upon 13. Question number 3. 2 dice are thrown. Find the probability of the following events. First one क्या है? Event A, the sum of the numbers on the upper face is at least 9. Event B, the sum of the numbers on their upper face is divisible by 5. Event C, the number on the upper face of the first die is greater than the number on the upper face of the second die. तो अभी फर्स्ट तो सैम्पल स्पेस ढूंढना है। यहाँ पे क्या लिखा है? 2 डाइज आर थ्रोन। जब भी 2 डाइज आर थ्रोन तो इसका सैम्पल स्पेस क्या रहेगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे 6 तक लिखना है। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो NS कितना हो गया? अगर ये टोटल गिनेंगे तो NS इज इक्वल टू 36। अभी इवेंट A क्या था? द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द अपर फेस इज़ एटलीस्ट 9। इसका मतलब क्या है? ये दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो 9 या 9 से बड़ा रहना चाहिए। अभी 1 + 1 2 है, 2 इज़ लेस देन 9 तो वो नहीं ले सकता है। 1 + 2 कितना है? 3, 3 इज़ ऑल्सो लेस देन 9, सो दैट वी कांट टेक। तो ऐसे नंबर्स लेना चाहिए कि जिसे ऐड करेंगे तो 9 मिलना चाहिए या 9 से बड़ा, जैसे कि 10 11 12 ऐसा ले सकता है। तो द फर्स्ट नंबर इज़ व्हाट? 3 6 3 6 3 6। if you add what you get? 9. So first number is 3 6. Second number is 4 5 4 5 4 plus 5 is what? 9. Next is what? 4 6 4 6 is what? 10 10 जो है वो 9 से बड़ा है, so you can take 9 and greater than 9 जो भी नंबर आता है वो that you can include in event A. तो 4 + 6 is 10, तो 4 + 6 भी आएगा।
Next one is what? 5 plus 4. 5 and 4. 5 और 4. 5 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आता है? 9. तो 5 4. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? 5 5. 5 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या आता है? 10. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? 5 6. 5 6 को ऐड करेंगे तो क्या आता है? 11. 5 6. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? 6 3. 6 3. When you add this you get 9. 6 4. 6 4 को ऐड करेंगे तो क्या मिलता है? 10. फिर नेक्स्ट 6 5. इसको ऐड करेगा तो क्या मिलता है? 11. और लास्ट वन इज 6 6. इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलता है? 12. तो इवेंट ए में ये सब आएगा। तो एन ए इज इक्वल टू हाउ मच? एन ए ढूंढो, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एन ए इज इक्वल टू 10। अभी इसका प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं। फॉर्मूला क्या है? पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस, दैट इज फॉर्मूला। देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू व्हाट? 10 और एन एस कितना मिला था? एन एस इज इक्वल टू 36. तो 10 अपॉन 36. 10 और 36 गोज इन टू स्टेबल. 2 5 ज़ा 2 18 ज़ा. तो पी ए इज इक्वल टू वॉट? 5 अपॉन 18. So probability of event A is what? 5 upon 18. Now next event B. Event B में क्या दिया है? The sum of the numbers on the upper face is divisible by 5. यानी इसमें जो भी numbers है ऐसे numbers लेना चाहिए कि जिसे ऐड करने के बाद वो 5 के टेबल में जाना चाहिए. So कौन सा numbers आएगा? Let us see from here. You can see from this sample space. तो फर्स्ट वन इज़ व्हाट? 1 4. 1 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या आता है? 5. 1 4 और 5 गोज इन 5 स्टेबल. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? 2 3. 2 3. 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आता है? 5. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? 3 2. 3 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आता है? 5, विच गोज इन 5 स्टेबल. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? 4 1. This also goes in 5 stable. Next one is what? 4 6. 4 6 को ऐड करेंगे तो 10 मिलता है. 10 goes in 5 stable. Next one is what? 5 5. 5 plus 5 is what? 10. 10 goes in 5 stable. And next one is what? Last one, 6 4. 6 4. 6 plus 4 is how much? 10. That goes in 5 stable. So NB is equal to how much? 1 2 3 4 5 6 7. So NB is equal to 7. Let us find out the probability of event B. तो event B का probability का formula क्या रहेगा? PB is equal to NB upon NS. That is equal to PB is equal to NB कितना है? 7. और NS कितना था? NS is equal to 36. NS is equal to 36. So event probability of event B is 7 upon 36. Event C, the number on the upper face of the first die is greater than the number on the upper face of the second die. इसका मतलब क्या है? जो फर्स्ट नंबर है वो बड़ा रहना चाहिए और सेकंड नंबर जो है वो छोटा रहना चाहिए. जो भी नंबर ऑन दी अपर डाई ऑफ द फर्स्ट अपर फेस ऑफ द फर्स्ट डाई आएगा दैट शुड बी बिगर एंड द नंबर ऑन दी अपर फेस ऑफ द सेकंड डाई जो है वो छोटा रहना चाहिए. अभी ये 1 जो है ये 1 दोनों से भी सेम होगा. यहाँ पे 1 जो है 2 से छोटा है, 1 जो है 3 से भी छोटा है, 1 जो है 4 से भी छोटा है, 1 जो है 5 से भी छोटा है, 1 जो है 6 से भी छोटा है. तो यू कांट टेक एनी ऑफ दिस. नेक्स्ट वन 2 1. 2 जो है इट इज़ बिगर देन 1. तो फर्स्ट वन इज़ व्हाट? 2 1. नेक्स्ट यू कांट टेक 2 2. यू कांट टेक. So next is 2 2 भी नहीं ले सकते. 2 3 2 4 2 5 2 6 you can't take because 2 is less than 3 4 5 and 6. तो next number क्या रहेगा? 3 1. 3 is bigger than 1. 3 is bigger than 2. तो ये दोनों नंबर ले सकता है. 3 1 and 3 2. Next one will be what? 4 1. 4 is bigger than 1. Next 4 2 4 3. 4 is bigger than 2. 4 is bigger than 3. Next one will be 5 1. 5 is bigger than 1. 5 is bigger than 2. 5 is bigger than 3. 5 is bigger than 4.
नेक्स्ट 5 और 5 6 नहीं ले सकता है. नेक्स्ट 6 का 6 इज़ बिगर देन 1, 6 इज़ बिगर देन 2, 6 इज़ बिगर देन 3, 6 इज़ बिगर देन 4, 6 इज़ बिगर देन 5. तो इतना नंबर, इतना इवेंट सी में ये सब आएगा. तो एन सी क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो एन सी इज इक्वल टू 15. नाउ लेट अस फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी. पी सी इज इक्वल टू व्हाट? एन सी अपॉन एन एस. दैट इज़ अ फॉर्मूला. सो पी सी इज इक्वल टू व्हाट? एन सी कितना मिला? 15 और एन एस कितना है? 36. बोथ गोज इन 3 स्टेबल. 3 5s are 15, 3 12s are 36. The probability of event C is what? 5 upon 12. So PC is equal to what? 5 upon 12. Last में आंसर लिख सकता है. PA is equal to what? PA is equal to 5 upon 18. PB is equal to what? 7 upon 36. और PC is equal to what? 5 upon 12. Lesson number 6, Statistics. First question, find the class mark of the class 6 to 10. ये 1 mark का question है. अभी 6 to 10 का लोअर लिमिट क्या है? 6. सो लोअर लिमिट इज इक्वल टू 6 और अपर लिमिट क्या है? 10. क्लास मार्क कैसे ढूंढते हैं? क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. लोअर लिमिट क्या है? 6 प्लस अपर लिमिट क्या है? 10 upon 2. Now 6 plus 10 is how much? 16 upon 2. Now 16 goes in 2 stable, 2 1s are, 2 8s are. So that is equal to 8. So class mark is equal to how much? 8. Second sum, if summation fi di is equal to 10,000, summation fi is equal to 100 and a is equal to 2000, then find x, that is mean we have to find out. ये 2 mark का question है. Summation fi di कितना दिया है? 10,000. Summation fi कितना दिया है? 100. a that is assumed mean कितना दिया है? 2000. और मीन x वी हैव टू फाइंड आउट. अभी मीन ढूंढने से पहले d ढूंढना है, दैट इज़ डिविएशन वी हैव टू फाइंड आउट. तो d डैश इज इक्वल टू व्हाट? समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई. समेशन एफ आई डी आई कितना है? 10,000 और समेशन एफ आई कितना है? 100. 2 0 कट हो गया. सो व्हाट यू गॉट? डिविएशन d इज इक्वल टू व्हाट? 100. 2 zeros were cancelled. 2 0 कट हो गया तो बचा कितना? 100. Now let us find out mean. Mean x dash is equal to what? A plus d, that is assume mean कितना है? 2000 plus deviation कितना मिला? 100. The mean x is equal to how much? X dash is equal to how much? 2100. Question number 3, the monthly expenditure of a family on different items is shown in the following table. Complete the following activity to calculate the related central angle. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. एक्टिविटी बेस्ड सम है. टोटल मार्क्स इसका कितना है? 2 मार्क्स है. अभी यहाँ पे सिर्फ हमें मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ही ढूंढना है. बाकी सब दिया हुआ है. फूड, उसका परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर कितना है? 40. तो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल क्या है? 40 अपॉन 100 इंटू 360 विच इज़ ऑलरेडी गिवन. तो अगर इसे हम कैलकुलेट करेंगे 40 अपॉन 100 इंटू 360 तो 0 कट हो गया और ये 0 कट हो गया. दैट्स इक्वल टू हाउ मच? 4 इंटू 36 इज हाउ मच? 144. तो फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा? 144 डिग्री. नेक्स्ट वन इज व्हाट? क्लोथिंग. क्लोथिंग का कितना है? 20. तो 20 अपॉन 100 इंटू 360 इज इक्वल टू हाउ मच? 20 upon 100 into 360. Again this 0 and this 0, this 0 and this 0 will go. 2 into 36 is how much? 72 degree. तो आंसर क्या है? 72 degree. Education they have given 30% of expenditure is how much? 30. So 30 upon 100 into 360. Let us find out that. 30
अपॉन 100 इंटू 360, एक ज़ीरो और ये भी एक ज़ीरो कट हो गया. 3 इंटू 36 इज इक्वल टू हाउ मच? 108 डिग्री. तो थर्ड बॉक्स में क्या आएगा आंसर? 108 डिग्री. लास्ट वन, अदर एक्सपेंडिचर, उसका परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर कितना दिया है? 10. तो 10 अपॉन 100 into 360. 1 0 will get cancelled, 1 0 will get cancelled, that's equal to how much? 36 degree. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 36 degree. Now if you add all this, what you should get? 360. टोटल कितना आना चाहिए? 360. इन सबको ऐड करके they have already given that total as what? 100. और ये 144 plus 72 plus 108 plus 36 ऐड करेंगे तो what you should get? 360. Question number 4. In the following frequency distribution table, ages of 300 patients and number of patients in a hospital is given. Find the median age of the patients. क्वेश्चन में एक टेबल दिया हुआ है, इसमें दो कॉलम है. फर्स्ट कॉलम में क्या दिया है? पेशेंट्स का एजेस दिया है इन ईयर्स, और सेकंड कॉलम में क्या दिया है? नंबर ऑफ़ पेशेंट्स. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. अभी आंसर में वापस टेबल बनाना है, लेकिन 3 कॉलम बनाना है. फर्स्ट और सेकंड कॉलम जो है वो क्वेश्चन में जो है वो सेम ही यहाँ पे लिखा हुआ है. थर्ड कॉलम इज़ व्हाट? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन द अपर लिमिट सी एफ. अभी ये सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढना है? फर्स्ट नंबर वही रहेगा 60. नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा? 60 प्लस 42 102. 102 plus 55 157. 157 plus 70 227. 227 plus 53 280. और 280 प्लस 20 इज़ हाउ मच? 300. अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? देर आर 60 पेशेंट्स जो 10 ईयर्स से लेके 20 ईयर्स तक उसका एज है, और देर आर 102 पेशेंट्स जो 10 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक इज़ देयर इन दिस 102 पेशेंट. और 157 का मतलब क्या है? 157 पेशेंट्स जो है उसका एज 10 से लेके 40 ईयर्स तक है. उसी तरह 227 पेशेंट्स का एज जो है वो 10 से लेके 50 ईयर्स तक है. सो दैट इज़ अ मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ना एन क्या है? जो लास्ट नंबर लिखा हुआ है दैट इज़ एन. एन इज इक्वल टू 300. देयरफॉर एन अपॉन 2 इज इक्वल टू व्हाट? 300 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 150. ना एफ कैसे ढूंढना है? अभी यहाँ पे क्या मिला है? 150. 150 60 के अंदर आता है? नहीं. 102 के अंदर आता है? नहीं. 157 के अंदर 150 आएगा. तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 55. और इसका ऊपर जो है अबव दिस वो रहेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. आई रिपीट वंस मोर. 150 मिला है एन अपॉन 2, तो यानी 157 के अंदर 150 आता है, तो दैट विल बी फ्रीक्वेंसी. और उसके ऊपर वाला जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी 102 इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो एफ इज़ इक्वल टू व्हाट? 55. एल इज़ इक्वल टू व्हाट? ये फ्रीक्वेंसी जहाँ मिला है 55, उसका यहाँ पे देखना है. उसका लोअर, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है. तो लोअर लिमिट क्या है? 30. तो एल इज़ इक्वल टू 30. सी एफ क्या मिला था? 102. और एच क्या है? 10. 20 माइनस 10 10. 30 माइनस 20 10. 40 माइनस 30 10. सो एच इज़ इक्वल टू व्हाट? 10. नाउ मीडियन वी हैव टू फाइंड आउट. ना मीडियन का फॉर्मूला क्या है? L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ, और नीचे आएगा F इंटू एच. देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू व्हाट? ना सब्सटीट्यूट द वैल्यू. L क्या है? 30, तो यहाँ पे आएगा 30 प्लस एन अपॉन 2 क्या मिला था? एन अपॉन 2 150 मिला था, तो यहाँ पे 150 माइनस सी एफ कितना है? 102. और F कितना मिला था? 55 इंटू एच. एच इज़ हाउ मच? 10. Now 30 plus 150 minus 102 कितना है? 48 upon 55 into 10. Now 55 and 10 goes in 5's table. 5 11s are 5 2s are. So that is equal to how much? 30 plus 48 into 2 is how much? 96 upon 11. Now let us divide 96 by 11.
तो 96 को 11 से डिवाइड करते हैं, 11 8 ज़ा 88, माइनस करो तो क्या आएगा 8, पॉइंट डाल के 0 डालो। अभी 11 7 ज़ा 77, माइनस करो तो क्या बचेगा 3, 0 डालो। 11 2 ज़ा 22, माइनस करो तो वापस 8 आएगा, 0 डालो तो अगेन यूल गेट 7। 11 7 ज़ा 77। तो ये आंसर जो है इट विल गो ऑन रिपीटिंग 8.7272727 रिपीट कैसा होगा 8.727272 इस तरह रिपीट होता जाएगा। इट इज़ अ रिकरिंग नंबर। तो 30 प्लस जब डिवाइड करते तो क्या मिलता है 8 पॉइंट के बाद 3 नंबर लिखो 727, दैट इज इक्वल टू 30 प्लस 8 पॉइंट। अभी ये 7 लास्ट जो थर्ड पॉइंट के बाद जो थर्ड नंबर है उसे हटा दो, ये हो जाएगा 7। लेकिन ये 7 जो हटा दिया वो 5 से बड़ा है, इसके लिए ये जो 2 है वो 3 हो जाएगा। सो 30 प्लस 8.73, 30 प्लस 8.73 इज हाउ मच 38.73. So median is what 38.73. So the median age of the patient is approximately 38.73 years. Question number 5. In the following table, the yearly investment made by 210 families is given. From this information, draw the histogram. तो ड्रॉ क्या करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में ये टेबल दिया हुआ है, 2 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में क्या दिया, इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़, और सेकेंड कॉलम में क्या दिया, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़, यानी 10,000 से 20,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कितना फैमिलीज़ किया, 30। 20,000 से 30,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कितना फैमिलीज़ किया, 50, एंड सो ऑन। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा, इट्स वेरी सिंपल। तो टेबल देखिए, यू हैव टू ड्रॉ दी हिस्टोग्राम। तो ग्राफ में एक्स एक्सिस बनाना है और वाई एक्सिस बनाना है। एक्स एक्सिस में क्या लिखना है, इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़, और वाई एक्सिस में क्या लिखना है, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़। इफ़ यू सी एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर कितना लिया हुआ है, 10,000 रुपीज़, और उसी तरह वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर कितना लिया है, 5 फैमिलीज़। वो स्केल में लिखना है। स्केल में एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 फैमिलीज़। अभी फर्स्ट में क्या दिया है, 10,000 to 20,000 रुपीज़ कितना फैमिलीज़ ने इन्वेस्ट किया है, 30। तो 30 के उधर बनाना है, 10,000 से 20,000 कहाँ तक है, 30 फैमिलीज़ हैव इन्वेस्टेड 10,000 to 20,000 रुपीज़। ये हो गया फर्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या दिया है, 20,000 to 30,000 रुपीज़ कितने फैमिलीज़ ने इन्वेस्ट किया, 50 फैमिलीज़। तो 20,000 to 30,000 रुपीज़ कितने फैमिलीज़ ने इन्वेस्ट किया हुआ है, 50। नेक्स्ट वन, 30,000 से 40,000 रुपीज़ कितने फैमिलीज़ ने इन्वेस्ट किया, 60 फैमिलीज़। तो 30,000 to 40,000 हाउ मेनी फैमिलीज़ हैव इन्वेस्टेड, 60। नेक्स्ट इज़ व्हाट, 40,000 से 50,000 रुपीज़ कितने फैमिलीज़ ने इन्वेस्ट किया, 55। तो 40,000 से 50,000 रुपीज़ तक कितने फैमिलीज़ ने इन्वेस्ट किया हुआ है, 55 टिल ईयर। नेक्स्ट वन, 50 से 60,000, 50 से 60,000 रुपीज़ कितने फैमिलीज़ ने इन्वेस्ट किया, 15।
50,000 से 60,000 रुपीज़ कितने फैमिलीज ने इन्वेस्ट किया है? 15. तो टिल ईयर. So this is the histogram which you have to draw. X axis, Y axis, और ये histogram हो गया और scale लिखना है. X axis 1 centimeter is equal to 10,000 rupees और Y axis 1 centimeter is equal to 5 families. So this is how we are supposed to draw the histogram.